Very good afternoon, all. I, on behalf of Digital Resources and Training Center, Delhi, warmly welcome all participants to today's webinar on building library collections, acquisition steps for print and ebooks. Thank you for joining us this afternoon. This session has been especially designed to help library professionals, LIS students, and working librarians and understand the practical and systematic approach to acquisition, both for print materials and e-resources. Before we begin, I request everyone to stay connected till the end, as we will also have a short question and answer session where you can interact directly with our expert. So now let me introduce our today's source person. We are honored to have with us Mr. Ashkar Hussain Hashmi, a highly experienced professional in the field of library information science. Mr. Ashkar Hussain Hashmi is currently serving as an information professional at Maulana Azad Library, Aligarh Muslim University, Aligarh. He has more than 12 years of practical experience in the collection development and acquisition division, where he has handled and supervised key processes related to print and digital resources. He completed his BSc in Geoscience from AMU and later pursued his Masters of Library Information Science from Delhi University. He is well versed in online search tools, information retrieval systems, ebooks procurement, and modern acquisition workflows. We are truly privileged to have him share his expertise with us today. So, without taking much time, I would now like to invite Mr. Ashkar Hussain Hashmi to begin the session and guide us through the important steps and best practices for building an effective and balanced library collection. So, sir, the session is all yours. Thank you, Fazal Kamran. Are you hearing me? Yes, sir, is audible, sir. Okay. I am starting. The topic of the presentation is building library collection. First of all, good afternoon, all of you. Then I want to tell you that the topic which are going to cover building library collection acquisition steps for print and ebooks. Whatever we have been taught in BL or AMLib, when we enter in the practical life, we see what we have been taught. The present situation is quietly different. So I will clarify all the points. I will try my best. Okay. Now we will start. Okay. First, understanding library acquisition, meaning and objectives acquisition, importance of acquisition in collection development, key differences between acquiring print versus digital material. Here, what type of library we have, किस तरह की लाइब्रेरी में हम काम कर रहे हैं, इस तरह का कलेक्शन हमें प्रोक्योर करना है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम स्पेशल लाइब्रेरी में हैं, इफ यू आर वर्किंग इन अ स्पेशल लाइब्रेरी, देन आवर फोकस ऑन द रिसर्च मटेरियल. If we are working in a public library, then journal related to the general public. And if we are working in an academic library, then we will focus on all aspect of courses from BA, BSc, BCom to MA, MSc, MCom or PhD. Okay. So then we come to the point, acquisition policy. जब हम बात करते हैं एक्विजिशन की, तो सबसे पहले हमें एक्विजिशन पॉलिसी बनानी होती है. एक्विजिशन पॉलिसी में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना पड़ता है कि एक्विजिशन पॉलिसी आर मेड not to bound our hand, but there should be some flexibility to give the relaxation to the
academic fraternity और यूजर्स। मैं आपको इस पर एक तजुर्बा बताऊंगा कि एक लाइब्रेरियन का वाकया है कि उन्हें ये अथॉरिटी थी कि वो अगर कोई किताब खोई गई है किसी स्टूडेंट से, तो वो उसके 1,000 रुपए की किताब है तो वो उसको 100 रुपए ले लिया करते थे उसके। फिर उन्होंने जो Hello, है, sir. जी जी, यस, Sir, would you explain in English, sir? ओके 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 सर, Okay, sir. ओके। तो देन he used to charge the rupees 1,000 rupees, the cost of the books 1,000 rupees, then he can take 100 rupees or 200 rupees according to his the situation of the matter. Now what happens that he made a policy and he bound himself that these are the parameters, that if the cost of the book is 200 rupees, then we will take uh, 500 rupees according to the year. जी, if the book is published in 2000, then we will charge 500 rupees extra, जी, beside the basic cost. Okay. What happens that one day one person come and he was insisting him to reduce the cost, जी, but he has bound his hand to make the policy, and he called the in charge of our section, and he request him that Hashmi Saab, please reduce some cost. जी, तो Mr. Hashmi told him that, sir, you have already made this policy and bound your hand that only the this may be reduced. जी, the fixed amount will be taken. जी, otherwise we have no solution. So I want to say you something that policies are to relax the system, not to not to जी, concise the system, not to tight the system. जी. So policies should be flexible. Authorities, what thinks authority should, that we will be safe after making the hard policies. जी. So first of all, we should keep in our mind while making the policy that we will provide the best services to the user, जी, by making a good policy. So first of all, जी, if we decide in a policy what from whom the recommendation will be taken, जी, so faculty members, जी, it is decided in the policy that we will take the recommendations from the faculty members, research scholars, students, or staff other than academic staff, non-teaching staff. Okay, it depends on you, including librarian also. Librarian also recommend the books. Okay, it depends on you that you receive these application through the head of the department of dean of the dean of the faculties. It depends on you. So first of all, you will have to mention in the policy that from which from whom the recommendation will be taken. Okay, second thing is discount. जी, it is very important point, discount. जी. My dear friends, keep in your mind while purchasing the book or when you place a precious seeds and give into use responsibility, that don't try to get more and more discount. जी. Our basic purpose is to procure the book. जी. Either it is purchase on lower discount or higher discount. जी. Because how much discount you are taking from the vendor, 35%, 40%, 50%, it doesn't matter. When the audit comes, he always object to the discount, for the discount. You have tried yourself best to procure the
higher discount. What happens when you try to procure the book on the higher discount? What happens? Vendor refuse to supply. जी, vendor refuse to supply. जी, because there are various type of titles. जी, one textbook, second research books, third reference books. So when we talk about the textbook, there are some publishers, the books of those publishers are very demandable, and these are almost in the all university, these are used, like Khanna publication, Kalyani publication, Dhanpat Rai, S. Chand. Only 15% discount is given to the vendor, and they give it in cash to the vendor, and you are placing the order on 25% discount. You have decided in the policy that we will not procure the book minimum, we will procure the book minimum at 20% discount. You have bound your hand in by making the policy and mentioning it in the policy that only at least 20% discount at we will procure the book. And the users, the faculty members are demanding that we want the commerce book from S. Chand, Kalyani, or engineering books from S. Chand, Dhanpat Rai, and you are placing the order at 25%. So how it will be supplied by the vendor? In spite of that, he is getting the 15% discount from the publisher. What happens? It becomes very difficult to procure. For example, foreign language books, Germany or French books, Chinese books. There is a vendor, Goel publisher. He gives only 10% discount to the vendors. And we are placing the order on 25%, 20%, 30%. He refused. So what we will give the answer to the faculty member or chairman of the department who has sent us the list for procuring the book? It will not be suitable or reliable to say that we are not getting the higher discount so that we may not purchase the book. This is not a logical excuse. So then, first of all, please focus your attention on procuring the book, not on the discount. You will be praised, you will be rewarded, you will be promoted on the performance of to procure the book, not increase the discount. Okay. So discount. So here we were talking about the textbook, or where you may get 35% discount, 40% discount, 45% discount on research book, reference books like Encyclopedia of Britannica, or handbooks, research books, edited books from Elsevier, Cambridge, IGI Global, Recruiter, Brill. You can get 40% discounts, but these are not textbook. These are used for the research scholars, for higher studies, for project reports. Okay. Then after that, vendors registration. You decide in the acquisition policy what type of vendors you will register. The only registered vendor. If you are working in a government organization or any prestigious private organization also, then please register the vendor. In registration, you will to have some points in your mind, or follow these points, that ITR. The firm should be filling the ITR. Okay.
कि वो the firm, जी, any firm like Bookline or KK or Allied, बहुत सारे, there are many vendors are there. The firm should fill ITR every year. Okay. And the third, please note down the points so that you may be comfortable to ask the question at the last. That that vendor should be the member of the Federation of Book. Okay. Third, third point is that vendor should be the well-known supplier for other institution also, like IITs, IIMs, medical colleges, and he will provide, you will ask him to provide the certificate of other institution that this firm is supplying the books for more than 10 years, 5 years, and his work is satisfactory. Okay. So these are the some points on which behalf we registered, or he should not any uh, bad record in other institution. Okay, this type of points we will have in mind while registering the vendor. Cost of loss book we have covered in the while lecturing the discount or previously. Okay, after ebooks are also the part of the policy, acquisition policy. When we talk about the print books, beside this, we talk about the ebooks also, because we are living in this the software age, information age, information technology age. So day by day, the use of the ebooks is increasing, and every student having a Android mobile. Uh, this is the user study, and we see in Maulana Azad library, most of the students are having tab instead of book and reading ebooks. Okay, next, this is the example of requisition form for books. Okay, you can see title, author, publisher, year, what bibliographic details you want. Okay, first off, the title should be given by the user, author, publisher, year of edition, number of copies, ISBN, and price. Okay, his name, his designation, department, mobile number, signature with the seal of head. This may be. Okay. Second, online book suggestion form are also like a tool for procuring the recommendation. You can upload this on your college website, college library or university library website. Okay. Now, selection of books. From which sources you will select the books. Then recommendation from the faculty members, research scholars, students. Second, book reviews. These are the very good source of latest book. Yeah? The Hindu book reviews, very classic books you can see in the Hindu book reviews, the Indian Express book reviews, or published in journals, also book reviews, exhibitions. You can call the vendors for the exhibition in your institution. They will bring a lot of books from on various streams, various subjects, and you will invite the faculty members, dean faculties, principals, professors, user, by sending them the emails or in notification invitation, and they will visit the stall, and they may purchase the book by cash for their own, or they can recommend their used to be put the recommendation form. We give the vendor when any faculty member or user comes and see the book and like that, please ask him to fill up this form, and this form will be sent to us, and we will see it after that for further
work. Book fair. World Book Fair are organized in Delhi. You, beside your companion, from the permission of the head of the department or vice chancellor, you can seek the permission from them to visit the book fair. Then you can go with your faculty members and select the books. Duplication. Now you have received the recommendation. Okay. Now the another step starts, that is duplication. You have title, you have author, you have publisher. First of all, you will have to check that title, that title which has been recommended by the user. Either this title is available in your library or not. Because, for example, any user has recommended the Encyclopedia of Islamic philosophy, for example, or Encyclopedia of Science and Technology, and its cost is 1 lakh rupees, more than 1 lakh rupees. Okay. Now you have not done the duplication. You have not checked that either this book is available in our library or not. And you have placed the order to the vendor. What happens? The same book is already available in your library. Now you have also purchased another copy of the same book. So you have wasted more than 1 lakh rupees of your institution. So first of all, please check the duplication of the recommended book first. When we talk about the duplication, then you will to have the correct bibliographic details. The title with the correct spellings, the author with the correct spelling, the publisher with the correct spellings. What happens? It is very general while when the user give us the recommendation. Incorrect bibliographic details are received. Generally, what happens? We take it to the Google and access the publisher sites and take the correct spellings. Now you have searched the correct spellings of that title. Now you come to your library software and enter it with the correct spelling. Now what happens? The cataloger has entered the wrong spelling of that title. What you are thinking that you have checked the title with correct spellings. Okay. And this what was not shown by the software. The software says that this book is not available. And for the encyclopedia, so you have entered ENCYCLOPADIA. You have entered encyclopedia, but the cataloger has entered the title with incorrect spelling, encyclopedia. I am showing you on the screen that the cataloger has entered the incorrect spelling, Encyclopedia of Islamic Philosophy. So you should not be satisfied with the correct spelling. You will have to enter incorrect spelling in the software, so that if the cataloger has entered the incorrect spelling, then you will see the exact result. Okay. If I am doing the duplication and I have my head of the department, my in charge has given me that please check this title, Encyclopedia of Islamic Philosophy, then what happened? If I am not checking this with the incorrect spelling, this is the live example on your screen. Okay. So I will request you, while acquisition procuring of book, first step is duplication. Please also check the spelling with correct spelling and incorrect spelling. Okay. Here you can also see the encyclo. here सही है देखिए. Okay. Here सही.
Now, placing of orders. Placing of orders of reference books and journal books, or placing of orders of text. Now, I was saying that discount here we decide to which vendor we will place the order. So when we place the order, we check the performance of the vendor. He is supplying the books properly and with a good performance. Okay. If we place the order of reference book, then we will place at 25% discount, 35% discount, or 40% discount. You may also call the quotation. Okay. If the order is more than 1 lakh rupees or 2 lakh rupees, 3 lakh rupees, you can also call the quotation. You know quotation? Send the email to the publisher and ask them to quote the discount, which vendor gives us the highest discount and highest number of books. Then we will place the order to that vendor. Okay. Excuse me, sir. Yes. Actually, many participants are saying we can use both the languages. So one person has instruct me to. No. Okay. We can use both the mixed languages. Yes. I was Bilingual. trying that. One person instruct me. No, I request actually, me. actually, many participants are saying in the chat section. Okay. Both language. Meena Kaur ji and Okay. K and Vijay Kumar ji. Okay. आई एम उनसे पूछिए आप के क्या रिपीट करें पहले जो हमने किया है उसको रिपीट करें हम थोड़ा सी हिंदी में आप ब्रीफ कर दें बस। अच्छा देखिए अब मैं इन ब्रीफ मैं कर देता हूं रिकमेंडेशन फ्रॉम फैकल्टी मेंबर्स रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट और स्टाफ से भी आप ले सकते हैं। डिस्काउंट का मैंने बताया आपको कि जो आप डिस्काउंट पर फोकस मत कीजिए बुक्स खरीदते वक्त, क्योंकि डिस्काउंट हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीदना। क्योंकि आप डिस्काउंट पर जब जाते हैं तो मैंने बताया आपको कि एस चांद है, कल्याणी है और आपका खन्ना है, या फॉरेन बुक्स है चाइनीज स्पेनिश या आपकी फ्रेंच की, ये 10 से 15% डिस्काउंट में मिलती है। अब आपने डिसाइड कर लिया एक्विजिशन पॉलिसी में कि हम 20% से कम पर खरीदेंगे ही नहीं। अब आपने अपने हाथ बांध लिया आपने, है ना। और जब हाथ बांध ली 20% पर, अब आपसे वो फैकल्टी मेंबर्स कह रहे हैं कि भाई आप हमें किताबें दीजिए। अब आपको वेंडर किताबें दे नहीं रहा है, बुक्स आपको 25% पर वो कह रहा है मुझे 15% तो मुझे मिल रहा है, मैं 25% पर आपको कैसे दे दूं। तो आप जो है वो ज्यादा डिस्काउंट के चक्कर में मत रहिए जी, कम डिस्काउंट पर भी खरीदिए। हमारा मकसद है किताबों को खरीदना, ना कि डिस्काउंट ज्यादा। अच्छा आप डिस्काउंट ज्यादा भी लेंगे, 35% 30% आपने ले लिया चाहे, तो भी आप पर ऑडिट ऑब्जेक्शन करता है। उसका तो काम ही ऑब्जेक्शन करना है। तो आप ये मत सोचिए कि 30% डिस्काउंट लेकर 35% डिस्काउंट लेकर और अपने यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करके हम जो है वो अपनी हायर अथॉरिटीज या अपने जो है वो ऑडिट से बच जाएंगे। नहीं, ये कुछ नहीं होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है वो यूजर को सेटिस्फाई करना है और अच्छे मटेरियल को लेना है, चाहे वो ज्यादा डिस्काउंट में मिले या कम डिस्काउंट पर मिले। तो ये चीज पहला वाला मैंने कहा था, एक्विजिशन पॉलिसी बनाते वक्त अपने हाथों को ना बांधिए जी, कि आप ऐसे उसमें रूल्स लगा दें कि आपके हाथ बन जाए। मतलब कुछ अथॉरिटी अपने पास भी रखिए ताकि आप यूजर को थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे सके। तीसरा मैंने कहा था वेंडर रजिस्ट्रेशन जो है उसमें 3-4 पॉइंट्स होते हैं। उसमें यह है कि वो आईटीआर फिल करता हो, ठीक है। दूसरा ये है कि वो दूसरी यूनिवर्सिटीज में सेटिस्फैक्टरी उसकी परफॉर्मेंस हो। तीसरा उसका ये है कि वो जो है फेडरेशन ऑफ बुक्स का जो है वो मेंबर हो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वो हैं जी। फिर कॉस्ट ऑफ लॉस्ट बुक मैंने बताया था आपको कि उसमें हम डिसाइड कर देते हैं कि भाई कितना हम लेंगे। मान लीजिए कोई किताब 200 रुपए की थी, हमने लगा दिया कि 2000 सन 2000 में वो अगर पब्लिश्ड हुई थी तो हम इस पर जो है 500 रुपए और एक्स्ट्रा लगा देंगे। इस तरह की पॉलिसीज बनती हैं कि 200 प्लस 500, देन वी विल टेक 700 in 2025 for the books which was published in 2000 and lost in 2025. Okay, ebooks then we will cover it at the end.
आफ्टर प्रिंट बुक्स। दिस इज द रिक्विजिशन फॉर्म जी। ये इस तरह के रिक्विजिशन फॉर्म बनते हैं, सभी आईआईटी पे जाएंगे करीब करीब ऐसा ही होगा रिक्विजिशन फॉर्म। ये और यूनिवर्सिटी आप जाएंगे सबके करीब करीब सभी मेन ये टाइटल, ऑथर, एडिटर, पब्लिशर, ईयर, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी वो रिकमेंड करना चाहते हैं, उनका नाम क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, ये सिर्फ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी ले सकते हैं ताकि उन्हें हम बता सकें कि आपकी किताब आ चुकी है एंड यू कैन इशू इट, टेक इट फ्रॉम द लाइब्रेरी। देन यू आप ऑनलाइन बुक सजेशन फॉर्म भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं जी। ये भी एक अच्छा तरीका है। उसका मैंने कहा सिलेक्शन ऑफ बुक्स जो है वो हम रिकमेंडेशन लेते हैं फैकल्टी मेंबर से एप्लीकेशन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, है ना, या स्टूडेंट रिक्वेजिशन फॉर्म जो मैंने ऊपर दिखाया आप फैकल्टी। बुक रिव्यूज आते हैं बहुत सारे, जर्नल्स में पब्लिश्ड होते हैं, हिंदू बुक रिव्यूज हैं, या आपका ये इंडियन एक्सप्रेस से बुक, बहुत अच्छी मयारी किताबें होती हैं इनकी। उसका एग्जीबिशन आप लगवा सकते हैं अपने यहाँ वेंडर्स को कॉल करके, वो इंस्टॉल लगा देते हैं, आकर स्टॉल लगा देते हैं, बुक्स ले आते हैं, आप फैकल्टी मेंबर्स को बुलाइए और वो उस पे से ले लेते हैं। अगर वो अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो वो पैसे दे देते हैं, नहीं चाहते तो उनसे एक फॉर्म फिलअप करा लिया जाता है, ऊपर वाले में दिखाया आपको, वो लाइब्रेरी आ जाता है, फिर फर्दर प्रोसेस शुरू हो जाता है। बुक फेयर्स में आप जा सकते हैं अपने फैकल्टी मेंबर्स को लेकर, इस तरह से आप जो है बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर डुप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि आपके पास जब बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आ जाती हैं तो आप इस पर मुतमईन ना होइए, सेटिस्फाई ना होइए आप कि आपने सही स्पेलिंग से सॉफ्टवेयर में चेक की हैं। मान लीजिए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लामिक फिलोसफी है, तो आपने एनसाइक्लोपीडिया से कर दिया, अब कैटलॉगर ने गलती कर दी कि ये एनसाइलो, उसने वो सी लगाना भूल गया इसमें। अब आप इस पर खुश थे कि मैंने तो भाई कर दिया, अब 16,000 रुपए की किताब है ये जी। अब आपने अगर इसमें गलत स्पेलिंग, थोड़ा सी हटाकर वाई हटाकर चेक नहीं किया, या फिर ये ब्रिटेन के हिसाब से है PAE, अमेरिकन पब्लिशर होगा तो वो सिर्फ ई लगाएगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ये किस हिसाब से स्पेलिंग है, और गलत स्पेलिंग भी, और आपको डुप्लीकेशन जरूर चेक करना है कि भाई एक किताब पहले से आपके, या तो वो टेक्स्ट बुक है, मान लीजिए भाई टेक्स्ट बुक जो है वो पढ़ने वाले उसके 200 हैं, 300 हैं, और है वो 5, तो अगर आपने एक भी मंगवा ली ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वो होती कितने की है टेक्स्ट बुक? 400, 500, 600, 1000, 1500 रुपए की होती है मैक्सिमम। जो आपकी और होती है फिजिकल बायोकेमिस्ट्री, वो बायोकेमिस्ट्री होती है लेनिंजर वगैरह की, या जीन होती है, वो 5000, 4000 की रेयर केस में होती है। लेकिन जहां एनसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक्स, रिसर्च बुक की बात होती है, वो 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए की होती है। तो अगर आप डुप्लीकेशन चेक नहीं करेंगे तो आपके 1 लाख रुपए वेस्ट हो जाएंगे। पहले से 22 वॉल्यूम रखे हुए थे, आपने 22 वॉल्यूम और मंगवा लिए, तो आपकी लाइब्रेरी में जगह है नहीं, 1 लाख रुपए आपने खर्च और कर दिए बेवजह, है ना। फिर आप पर जो है सख्ती होगी, उसमें आपसे शो कॉज दिया जाएगा आपको, भाई आपने डुप्लीकेट क्यों कर दिए, है ना। तो डुप्लीकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्विजिशन। ओके, मैं इसके बारे में एक चीज और ये कहता हूं कि ये चैलेंजिंग है, तो चैलेंजिंग उमूमन क्या होता है कि इंटरेस्टिंग होता है। चैलेंजिंग इज इंटरेस्टिंग, बट ये क्या है, ये चैलेंजिंग भी है और बोरिंग भी है, बहुत बोरिंग काम है ये जी। डुप्लीकेशन जो है ये चैलेंजिंग भी है और बोरिंग भी है जी, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि चीजें बहुत कम्बरसम होती हैं। ओके, नाउ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर जी। ऑर्डर प्लेसिंग में हम चीज ये देखते हैं कि रेफरेंस बुक्स हम कर रहे हैं, जर्नल बुक्स कर रहे हैं। जर्नल बुक्स में रिसर्च बुक्स होती हैं मेनली, रेफरेंस बुक्स में आपके एनसाइक्लोपीडियाज वगैरह आ जाते हैं। तो इनका भी डिस्काउंट मैंने बताया पीछे आपको कि 35% रेफरेंस बुक्स में मिल जाता है। 35%, 40, मतलब वेंडर दे देता है 40% तक डिस्काउंट दे देता है रेफरेंस बुक्स पर, जर्नल बुक्स पर देता है। टेक्स्ट बुक पर जो है वो 10 से 15% आपको मिलेगा, या 25%। अगर वो पियर्सन की है, या वायले की है, मैकग्रा हिल की है, या ऑक्सफोर्ड की है, तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो एसशान की है, कल्याणी है, खन्ना है, या मैंने जैसे आपको बताया था फॉरेन लैंग्वेजेस बुक्स होती हैं वो हैं, तो आपको 10 से 15% से ऊपर डिस्काउंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करें कि दोनों को मिक्स कर दीजिए, रेफरेंस और जर्नल के साथ कोटेशन मंगवा लीजिए, तो टेक्स्ट बुक का भी आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेंडर एक ये चालाकी करते हैं कि वो क्या करते हैं कि उस टाइम तो कोट कर देते हैं, बाद में रिग्रेट टू सप्लाई कर देते हैं।
जी। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो इस तरह के ऑर्डर प्लेस करें कि आपकी ज्यादा किताबें आ जाएं। ओके, ये एक तरह का फॉर्म होता है, ये हमारे लाइब्रेरी का फॉर्म है जिस तरह हम बनाते हैं। जी। Sir, जी, यस यस। sir, can you do one thing? First explain in English, sir, then in Hindi, sir, because ओके some of ओके them are English students only. okay, okay, yes, my dear brother, the same thing I have already explained in English. Okay, now I have translated the same after that in Hindi. Okay, okay, I will Yeah, do, okay, I sir. will, It I will will be both use. comfortable for everyone, sir. Okay, okay, sir. Okay, 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 sir. okay. Now verification of title. Verification. This is most important part after placing the order. The list which has been placed in the form of order to the vendor. This is the order form. Here you have mentioned the number of publications, the discount, English titles on 25%, Urdu titles on 20%. Here I am also showing you a point to the extent of race 677, 6768. What is this? This is the amount which you have. ये वो अमाउंट है जो आपके पास, मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूशन ने आपसे कहा कि भाई लाइब्रेरियन साहब आप हमारे पास 50,000 रुपए हैं और आप जरा किताबें खरीद दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपने जो है वो ऑर्डर प्लेस किया, 50 टाइटल्स आपने डाले यहां पर, और यू हैव एंटर्ड 15 टाइटल्स एंड द डिस्काउंट मेंशन इन द फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म 25%। जी। एंड द कॉस्ट ऑफ द लिस्ट, दिस लिस्ट इज मोर देन 50,000। जी। द कॉस्ट ऑफ यू हैव एस्टिमेटेड बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, आपने ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने इसका एस्टिमेशन लिया तो 1 लाख रुपए से ज्यादा की थी और है आपके पास 50,000 रुपए। जी। तो उसमें क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू डू दैट वी विल मेंशन द अमाउंट ऑन द ऑर्डर फॉर्म, के वी विल आस्क द वेंडर टू प्लेस टू सप्लाई द बुक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। ओके, कि भाई 50,000 रुपए से ऊपर की किताबें आपको हमें सप्लाई नहीं करनी है। अगर आप सप्लाई कर देते हैं हम वापस करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे अब तो मेरी सप्लाई हो गई मैंने खरीद ली। जी। आई हैव परचेज ना, यू विल नॉट से। जी, we will told the vendor that you will not say that I have purchased already, I have supplied the book more than 50,000, please procure it. No, we have already mentioned the extent amount on the order form. We have already informed you that the please supply the books to the extent of 50,000, जी, not more than 50,000, you will have to return it. तो ये चीजें हैं जो हमें बताती हैं ऑर्डर फॉर्म में कि भाई 50,000 रुपए हमारे पास है, आप मेंशन कर दीजिए वहां भाई 50,000 रुपए तक की आप खरीद हमें दीजिए आप। ठीक है, अब ये लिस्ट ये है हमारे पास, दिस इज द लिस्ट एंड दिस इज द ऑर्डर फॉर्म। ओके जी। नाउ what happened, the bill has come from, we place the order to the book line, the book line has sent the bill along with the books. So then first of all we will check the discount. In the bill 25% discount on English book. Okay, please match this discount to the order 25%. Now it has been matched कि ऑर्डर फॉर्म में भी 25% है और बिल में भी 25% है। ओके, अगर वो 20 कर देते तो फिर हम उनसे we will call the clarification from the vendor कि why you have supplied the books on 20% at 20%, in spite of that we have ordered you at 25%. Then we will process the bill at 25% because we have ordered the order at 25%. We will process the bill according to the discount mentioned in the order form. If he say that sir I have purchased these books less than 25%, then we will say that send the price proof. Okay, send the proof. So after that we will check the title from the order, API textbook of medical, API textbook of medicine, 11th edition, 11th edition. Okay, the information which is given in the bill should be matched with the titles list of books which we have sent to the vendor. Okay,
नाउ यू हैव मैच द डिस्काउंट, यू हैव मैच द टाइटल्स। ओके, आपने टाइटल्स भी मैच कर दिए और आपने जो है वो डिस्काउंट भी मैच कर लिया है। अब आता है आपका किताबों पर, बुक्स को आपको चेक करना, यू हैव टू चेक द बुक, इट्स प्राइस एंड इट्स एडिशन। ओके, हियर वेरिफिकेशन, क्या क्या वेरीफाई करना है, व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, वेरिफिकेशन ऑफ डिस्काउंट विद द ऑर्डर प्लेस्ड, वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ बुक, जी, द बुक शुड नॉट बी torn, मिसिंग पेज, दिस शुड बी एन गुड फिजिकल कंडीशन, वेरिफिकेशन ऑफ एडिशन, verification of conversion rates, verification of price proof. Now I will tell you first about the addition. Here I am giving you one example. यहां देख रहे हैं आप, देखिए ये जो वेंडर काम करते हैं वो ये बहुत, इसे ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है जी। द प्रोफेशनल बिकम कंफ्यूज बिकॉज द ऑथर इज सेम, टाइटल इज सेम, बट वन book is cost 675 rupees and the same book is $183, you know, near about 9,000. This is the main difference which I want to show you. Classical sociological theory by George Ritzer, its cost is 675.75, 795 रुपए है इसकी। और आप सेम बुक आप देख रहे हैं, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी, its cost is $183, near about 9,000, near about 10,000, 8 to 10,000. What is the difference between it? This is the Indian edition and this is the foreign edition. The basic difference is this. It is Indian edition. What happens? Sage has given the permission to Rawat Publication. You can publish this book. It's older edition. This is the 6th edition and this is the 8th edition. You can see on the screen the same title, same book. Its 6th edition is cost is 675 and 8th edition its cost is 183. The same author, the same title. Okay, so what happens, suppliers, what he do to get the more benefit, more amount, he supplies the foreign edition. He supplies the foreign edition. Here you are spending only, you can get this book by spending 675. Here you can procure this book at 10,000. So this is the work of verifier to verify the edition. Okay, you can ask me the question after that. Physical edition, conversion rates. Okay, conversion rates. What happens? आपके पास एक किताब आई फॉर एग्जाम्पल, तो वो $100 की थी फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ दैट बुक इज $100. ओके, then what happens? There are various conversion rates like SBI conversion rate, Bank of India conversion rate, and what is good office committee rate. So, as Bank of India conversion rate, and the difference between the Bank of India conversion rate and the good office committee conversion rate is 20 to 30. If the dollar now, the dollar is 90 rupees according to Bank of India rate, when you will go through good office committee conversion rate, it will be more than 100. For example, if you procure the book, if you purchase the book according to the Bank of India conversion rate, its cost will be 1,000 or 2,000 lesser. ये किताब आपकी सिर्फ कन्वर्जन रेट की वजह से 1-2 हजार रुपए कम हो जाएगी। आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर ये जो है, अगर हम बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई या आरबीआई कन्वर्जन रेट के हिसाब से $100 फॉरेन एडिशन की किताब लेंगे हम कोई जी, तो वो हमें जो है वो मिल जाएगी 9,000 रुपए में। और अगर हमने वो ले ली गुड ऑफिस कमेटी कन्वर्जन रेट से,
तो वो हमें पहुंचेगी 10,000 से ऊपर की। तो हमें सिर्फ कन्वर्जन रेट की वजह से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो हम ये भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में रखते हैं, व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर वी मेंशन दैट द सप्लायर विल हैव टू चार्ज द कन्वर्जन रेट according to the Bank of India or SBI or any nationalized bank, not good office committee rates. Okay, after verification of price. Verification of price. There are two types of price proof. One is price print. जी, दो तरह के प्राइस प्रूफ होते हैं। एक प्राइस प्रिंट होता है और एक पर प्राइस प्रिंट नहीं होता। देर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स। सम पब्लिशर प्रिंट द प्राइस ऑन द बुक, बट सम पब्लिशर डज नॉट प्रिंट द प्राइस ऑन द बुक। कुछ पब्लिशर जो हैं वो प्राइस प्रिंट करते हैं बुक पर, कुछ पब्लिशर प्रिंट नहीं करते। अब हमारे पास जब बिल आया, व्हेन वी रिसीव द बिल, द कॉस्ट ऑफ द बुक वाज 995 रुपीज इन द बिल। ओके, नाउ यू चेक द प्राइस ऑफ द बिल, द प्राइस ऑफ द बुक इन द बिल इज 995 जी, एंड द प्राइस ऑफ द बुक print on the book are 995. Both are matching. Okay, you have been satisfied. The verifier has been satisfied कि सही उसने जो है वो हमें चार्ज किया है प्राइस। अब यहां पर दूसरी किताब आप देखें, इफ यू सी द अनदर बुक, मोबाइल ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया नेटवर्क्स, दैट हियर यू कैन नॉट सी द प्राइस and the vendor has mentioned the price, what hardback 95.25 इट्स कॉस्ट। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये 9995 की इसने जो है बिल में चार्ज की है। अब हम कैसे हम करें भाई, हमें तो प्रूफ चाहिए ना। हमें वी एज अ वेरीफायर, लाइब्रेरी प्रोफेशनल, वी विल हैव टू वेरीफाई द amount, the cost of the book. For example, he has purchased the book 1,000 rupees from the publisher and he is charging 2,000 rupees. No, he will have to supply the book on the publisher rates. He cannot decide the rates. Who he is? He cannot decide the rates. He will have to submit the correct and authentic price proof. Okay, my dear friends. तो यहां मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो ये दिखा रहा हूं कि देखिए इस वाली किताब का आप देख रहे हैं 995 रुपए है, इस वाली किताब में नहीं है, इस वाली बुक में नहीं है। अब क्या कहेंगे आप फिर कहेंगे उससे, या तो वो भेजेगा, he will send the price proof beside bill, with the bill. If he has not sent the price proof beside the bill, then you will call him or you will email him for sending the authentic price proof. There are two types of price proof. What? Authentic price proof and non-authentic price proof. Non-authentic price proof means वो क्या कहेगा, वो किसी और वेंडर से, he asked to another vendor, please show in your invoice that this book cost is this and send me your invoice. No, he will show us the publisher price proof. He will show. मोस्टली मतलब कोशिश कीजिए कि वो पब्लिशर का नहीं, हम परचेज इनवॉइस भी कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल करेंगे ही नहीं। बहुत बड़े बड़े पब्लिक वो हैं, सॉरी वेंडर हैं, बड़े बड़े वेंडर्स हैं, मनोहर है, यूबीएच है, डेली बुक वाले हैं, या आपके और बड़े बड़े हैं, वो ऑथेंटिक होते हैं, वो ऑथराइज्ड होते हैं जी। रूटलेज के लिए जो है वो मनोहर ऑथराइज्ड है जी, ये बुक्स छापते हैं, उनकी पब्लिश करते हैं, तो वो उनके ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, तो उनका हम ले सकते हैं। लेकिन ऐसे ही किसी का नहीं लेंगे, उसे हम थॉरोली चेक करेंगे उसको भी हम। तो ऐसा नहीं है कि हमें परचेज इनवॉइस लेनी ही नहीं है, हमें किसी दूसरे वेंडर का बिल लेना ही नहीं है कि भाई मान लीजिए हमारा वेंडर किसी और का बिल दे रहा है कि मैंने इस वेंडर से खरीदी है ये किताब इतने रुपए की, तो हम इंसिस्ट तो यही करेंगे उसे कि भाई तुम हमें बताओ, वी विल इंसिस्ट हिम टू प्रोवाइड द पब्लिशर प्राइस प्रूफ। If he unable to provide the publisher price proof and we satisfied from various methods that he is providing the authentic price proof, then we can accept the vendor price proof. But we will try our best to
जी, टू गेट द ऑथेंटिक प्राइस प्रूफ फ्रॉम द पब्लिशर। ओके, तो यहां पर जब नहीं होगी कॉस्ट, तो फिर वो हमें ये प्राइस प्रूफ देगा, या तो पब्लिशर साइट का दे या फिर पब्लिशर के लेटर पैड पर दे। जी, either he provide the price proof of publisher site or on the letter pad or invoice of purchase invoice of the publisher. Okay, now you have verified the discount, you have verified physical condition, you have verified the addition, you have verified conversion rate, you have verified the price proof. All after all, now the book is ready for accessioning. तो ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, द ऑल द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू, जी, द बुक passes from all processes. Now it is ready to accessioning, you know. Okay, now the book is ready for the accessioning. You can accession it in your record. Okay, अब हम आते हैं ई बुक्स पर। हाँ कामरान, मिस्टर कामरान, Yes, yes, ये बताइए कि हम अभी प्रिंट क्योंकि खत्म किया है हमने, तो yes, yes. क्या प्रिंट पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, क्यों फिर हम ई शुरू कर देंगे, वो फिर मिक्स हो जाएगा ई Yeah, बुक्स में प्रिंट। yeah, we may have questions. ओके ओके ओके, तो प्लीज आस्क द पार्टिसिपेंट्स टू आस्क द क्वेश्चन। If you have any doubt, participants, please let him know. You have any question or any query? Sir, one doubt. जी, what doubt? Yes, yes, yes. Uh, in the past, you told online book registration form. Whether you try to explain it in detail, sir? Online book suggestion form. Okay, okay. Yeah. This one. Yeah, sir. Yeah. Yeah, it is very simple. It is very simple. It's not complicated. Just you can also make it yourself on Google Form, or ask your IT team to make a page online book suggestion form and upload it on the university library website. What happens when a user enter its his desired title, publisher, or author, and submit with the authentic his membership details like his name, his class, his enrollment number, his roll number. Okay, then he can submit. जब वो submit कर देता, then when he submit the online book suggestion form, then it is stored in your database. Then your IT team, or if you are managing that portal, you can see, you can download it in the form of Excel sheet. Okay. Yeah, okay, sir. Any other? Yes, sir. I have. Yes. May I ask a question? Yes. Please explain the meaning of conversion rate and the Yeah, verification very of good, very good. conversion rate. yes. Conversion rate, yeah. मैं बहुत खुश होऊंगा, देखिए अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं खुश होऊंगा, वाकई में कुछ आप इंटरेस्टेड थे और आपको कुछ इससे फायदा हुआ है। वरना तो मैं ये सोचूंगा कि जैसे आजकल हो रहा है वही होगा। ये चीजें आपको जो हैं वो किताबों में नहीं मिले। यू विल नॉट फाइंड दीज थिंग इन द बुक्स। ओके, दीज आर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। एंड व्हेन यू, जब आप नए नए जाते हैं एज ए लाइब्रेरियन और आपको एक्विजिशन सेक्शन में रखा जाता है, तो वहां पर बजटिंग का मसला होता है, देखिए ऑडिटिंग का मसला होता है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी वहां पर, कि आप कम कॉस्ट में अच्छी किताबें खरीद लेंगे, है ना। तो आप बात कर रही हैं कहाँ की, कन्वर्जन रेट। जी सर। हाँ, कन्वर्जन क्या होता है, देखिए जब कोई किताब हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका है, देखिए ये रेफरेंस बुक है, आपने ऑर्डर प्लेस किया किसी वेंडर को। अब ये कितने, मान लीजिए ये 1,000, ये कितने की, $1,000 की है फॉर एग्जाम्पल, नहीं ज्यादा की है, और ज्यादा की है ये कोई किताब मान लीजिए $1,000 की है। अब $1,000 की वो किताब है, तो अब क्या होता है, देखिए ये जो फेडरेशन ऑफ बुक्स कमेटी होती है, जिसके मेंबर होते हैं, उनका एक ये पूरे 1 महीने का या कुछ ड्यूरेशन का ये फिक्स कर देते हैं
कन्वर्जन रेट, कि भाई अब डॉलर जो है हमारे हिसाब से 100 रुपए का रहेगा 3 महीने तक। ठीक है, एक तो ये पूरी लिस्ट आती है उनकी, डॉलर इतने का रहेगा और यूरो इतने का रहेगा और पाउंड इतने का रहेगा। तो वो मान लीजिए $100 का हो जाता है, पाउंड रहेगा 110 रुपए का, ये रहेगा 100 रुपए का, और यूरो रहेगा मान लीजिए 90 रुपए का। अब इसी को आप जब बैंक ऑफ इंडिया के उसमें देखती हैं, जी मैं इसको आपको दिखा सकता हूं यहां पर। Sir, one personal doubt, sir. एक मिनट, बस इनका मैं पूरा कर दूं तो। जी, कुछ हो रहा है इसमें तो कोई बात नहीं है, मैं आपको जो है वो दिखा सकता हूँ, 1 मिनट चलिए। Sir, in the December session, there जी will be net exam. 1 मिनट सर, 1 मिनट, इनकी इनका पूरा कर दूं मैं। तो इसमें क्या है देखिए, इन नट शैल, नॉट इन डिटेल, कि कन्वर्जन रेट जो है वो बैंक ऑफ इंडिया में 90 रुपए का है इस टाइम। ठीक है, तो अगर आप वो किताब बैंक ऑफ Sir, इंडिया, you ये are not आपको, audible. जी ऑडिबल, आई एम नॉट ऑडिबल। No, no, sir, you are audible. ऑडिबल सर, ऑडिबल ऑडिबल। ऑडिबल ऑडिबल, ओके। तो अगर ये किताब आप जो है वो आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो आपको ये मेंशन, यू विल हैव टू मेंशन इन द ऑर्डर फॉर्म कि आप जो है वो बैंक ऑफ इंडिया का कन्वर्जन रेट लगाएंगे। वरना वो क्या करते हैं, गुड ऑफिस कमेटी का लगाकर भेज देते हैं, तो वो किताब फिर आपको पड़ जाएगी कम से कम 4-5 हजार महंगी। भाई फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का फर्क आ रहा है, तो जो किताब आपको 8 हजार की मिलनी थी वो किताब आपको 10 हजार की मिलेगी, सिर्फ कन्वर्जन रेट की वजह से ज्यादा। और अगर आप उसे कहेंगे भाई वो दीजिए जो हम कह रहे हैं नेशनलाइज बैंक का, तो फिर आपको वो किताब 2 हजार रुपए कम हो जाएगी, 4 हजार रुपए कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब कभी आप ऑर्डर प्लेस एक्विजिशन में काम करें आप, तो प्लीज कोशिश कीजिए नेशनलाइज बैंक कन्वर्जन रेट लेने का, ना कि गुड ऑफिस कमेटी का। ठीक है, यस, हेलो, Sir, one personal doubt, sir. हाँ, यस 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 Sir, in the December session, there will be net exam. I am a यस fresher to net exam. यस यस Can you यस। give me some guidelines for net exam, sir? नेट, Yeah. regarding net, Yeah, sir. yes, Yeah. my dear, the topic which have covered, it is not related to the net. Some No, question no, no, sir. I am practically, asking personally. वो the Kamran is very expert in this line. Okay, he has cracked Oh, okay. already JRF. Okay, so please talk to me on my topic at this time. Okay, 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 sir. okay, okay. Any other? हेलो सर। Hello, yes, yes. सर जैसे कोई यूजर कोई बुक की डिमांड करता है, जी जी। तो उसमें हम सीधा ही उसको परचेज कर सकते हैं या फिर उसमें लाइब्रेरी कमेटी का भी कोई रोल होता है? अच्छा, मतलब कोई डिमांड करी उसने, ठीक है, फिर जी। तो तो मतलब सीधा ही हम उसको उसके उसकी डिमांड के आधार पर सीधा ही डुप्लीकेट चेक करके मंगवा सकते हैं, या इसमें कुछ लाइब्रेरी कमेटी का भी इसमें रोल रहता है सर बीच देखिए, में? ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अगर आपका स्मॉल सेटअप है सर, तो फिर आप जैसे चाहें जो है वो उसे मैनेज कर लीजिए आप, है ना जी। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो सर इसके लिए जो है वो बाकायदा उसका डुप्लीकेशन चेक होकर, और आप देखें कि ये किताब जो है वो कितने डिस्काउंट पर आ सकती है जी, वो डिस्काउंट्स का डिसाइड कीजिए सर, और फिर उसे ऐसे वेंडर को दीजिए जो उसे सप्लाई कर सके जी। तो अगर वो और महंगी किताब है सर, वो ये बात हो रही है 200, 400, 500 रुपए की किताब की बात हो रही है, लेकिन अगर वो किताब महंगी है सर, 10 हजार रुपए की है, 15 हजार रुपए की है, तो फिर उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, उसका डुप्लीकेशन भी हो, उसका सारी चीजें जो मैंने बताई हैं अपने इस प्रेजेंटेशन में, वो चीज फॉलो होनी चाहिए।
ठीक है सर। जी सर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर में लाइब्रेरी कमेटी की भी सहमति लेनी होती है, ऐसा कुछ है नहीं सर, उसमें? ऑर्डर में नहीं लेनी होती है सर, वो तो आपको अप्रूवल लेना होता है जब आपको ग्रांट सैंक्शन की जाती है। यानी मान लीजिए आप जो है वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशल लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, और आपको 10 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक है सर। आपको बार जी। नोटिस आ गया कि आपको 10 लाख रुपए दिए गए हैं। अब आप उस 10 लाख रुपए का नोटिस आने के बाद, लेटर आने के बाद, उसको अप्रूव कराइए लाइब्रेरी कमेटी में, कि लाइब्रेरी कमेटी आपको परमिशन दे उसको यूज करने की। जी। ठीक है सर। अब जब वो आपको 10 लाख रुपए लाइब्रेरी कमेटी आपको बाकायदा परमिट करेगी, आपको परमिशन देगी, उसमें मिनट्स बनेंगे उसके, जो कमेटी अप्रूव करेगी मिनट्स बनेंगे, उसमें कहा जाएगा कि लाइब्रेरियन इज ऑथोराइज्ड टू, जी, परचेज द बुक अंडर दिस ग्रांट। तो बाकायदा लिखा होता है। अब आप जो है ऑथोराइज्ड हैं आप। अब लाइब्रेरियन जो है इस पर अपना रिकमेंडेशन लेंगे, उसका डुप्लीकेशन चेक कराएंगे, जी, उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसको वेरीफाई कराएंगे, और फिर एक्सेशनिंग हो जाएगी सर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट टू मूव ई बुक्स। Yeah, okay, sir. ओके। Yes, acquisition of ebooks. When we talk about ebooks, there are various type of ebooks: perpetual and yearly. Two types. Perpetual. Perpetual means, yeah, yearly. First, we will take yearly. Yearly means when you purchase ebooks yearly, subscribed, these will be accessible only for 1 years. कि अगर आपने ई बुक्स ली हैं तो दो तरह की होती हैं, परपीचुअल एंड ईयरली। ओके। तो अगर आपने जो है, इफ यू परचेज द सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई बुक्स, देन दोज विल बी एक्सेसिबल फॉर यू ओनली फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए होगी। ठीक है। और अगर आपने परपीचुअल ली है, परपीचुअल वाला मोड लिया है आपने, these ebooks will be accessible near about 14 years, 20 years. मतलब डिफरेंट पैरामी वो हैं जी, मोड हैं वो, डिसाइडेड बाय द, एज डिसाइडेड बाय द पब्लिशर। फॉर एग्जांपल पियर्सन, when we talk about Pearson, its perpetual period is 14 years. Cambridge or Oxford, its perpetual period is more than 14 years. जी, तो दो तरह के होते हैं, ईयरली और परपीचुअल। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, ईयरली में क्या होता है? ईयरली में जो है सर, माय डियर फ्रेंड्स, वो टेक्स्ट बुक होती हैं ज्यादा। जी, जैसे वाइले ई टेक्स्ट बुक हैं, पियर्सन ई टेक्स्ट बुक हैं, PHI ई टेक्स्ट बुक हैं, जी, या ऑक्सफोर्ड की टेक्स्ट बुक हैं जो इंजीनियरिंग की चलती हैं या मैनेजमेंट की चलती हैं। ये 1 साल के लिए होती हैं सिर्फ। ठीक। या आपका फॉर एग्जांपल इब्सको ई बुक कलेक्शन है, इब्सको ई बुक कलेक्शन, द नंबर ऑफ टाइटल्स आर मोर देन 1,000 और 10,000 और इन लैक्स ऑल्सो। जी। तो ईयरली में आपको क्या होता है, यू आर बेनिफिशियल इन द फॉर्म ऑफ टाइटल्स, यू आर you have the access more than 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 titles for 1 year. When we talk about perpetual, here the number of titles decrease. यहां पर जो है आपके नंबर ऑफ टाइटल्स डिक्रीज होंगे, जितने आपने पिक किए हैं, चूज किए हैं, उतने ही होंगे। इसमें कोई वो नहीं होगा कि परपीचुअल में आपके पास लाखों, 10,000 टाइटल्स आ जाएंगे या 20,000 टाइटल्स आ जाएंगे। ये आपको मिलेगा, ज्यादा टाइटल्स जो मिलेंगे वो आपको शॉर्ट पीरियड के लिए बुक्स पैकेजेस में मिल जाएंगे आपको ईयरली में। लेकिन जहां परपीचुअल की हम बात करते हैं, वहां पर जो है वो नंबर ऑफ टाइटल्स घट जाते हैं।
और ये लेकिन एक्सेसिबल काफी हद तक रहते हैं ये। ठीक है सर, ये दो तरह के इस तरह से परपेचुअल होते हैं। अच्छा, ये फिर दो तरह के हो जाते हैं फिर, ये दीज आर टू टाइप्स, आईपी बेस्ड और यूजर आईडी बेस्ड। ठीक है, यानी आईपी एड्रेस होता है, जस्ट यू विल गो टू योर वाइड access network area, your internet connected through your institution wide network area. Okay, you can access these books without any login id. और दूसरी तरह की होती है अदर एंड यूजर आईडी, यू आर प्रोवाइडेड वन यूजर आईडी फॉर दोज बुक्स जी, विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दोज बुक। ओके, अब इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल्स इसमें आ जाते हैं आपके, कि आप जो है वो किस तरह का, तीन तरह से आप ई बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं। एक तो ई बुक्स पैकेजेस होते हैं कि पब्लिशर्स ने जो है जी, पब्लिशर हैज मेड द ई बुक्स पैकेजेस जी ऑन अर्थ साइंसेज, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, ओके, लॉ जी। दे अप्रोच यू, आपको वो अप्रोच करेंगे, आपको बताएंगे, फिर जो है वो आपको वो दे देंगे, वो फिर ये ले लीजिए। और ई बुक पैकेजेस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइटल्स आर नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट ए, टू योर सिलेबस। ओके, दे आर ऑलरेडी मेड एट द एंड ऑफ द पब्लिशर, वो जो है पब्लिशर के एंड पर बनाए हुए होते हैं, वो जो चाहे उसमें रख देते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। उसमें वो टाइटल्स भी होते हैं जो आपकी जरूरत के होते हैं जी। इन द ई बुक पैकेजेस दोज there are those titles which are useful for you, and also those titles which are not useful for you. Okay, the second thing is pick and choose. What happens that the faculty members, scholar provide you a list of books and they are asking you to procure them in the form of e-books, or you call to the publisher and ask them to send the list of ebooks, then you have pick and choose those titles, then you place that order. Okay, the third thing is access denied titles. What happens, what is this? Access denied titles are those titles where the publisher shows us that this book has been accessed by your institution platform, e-platform, 10 times, 20 times, 30 times, 200 times, but due to not subscribed or not purchased by your institution, they are unable to download it, access it. They only read the table of content or abstract. तो यहां वो हमें ये बताते हैं एक्सेस डिनाइड टाइटल्स में कि भाई ये फॉर एग्जाम्पल एक किताब है जो कोई सी भी, जैसे नाजिम साहब की हमने खरीदी एक किताब है नॉलेज मैनेजमेंट पर, एल्सेवियर वालों ने हमें बताया कि ये जो है आपके यहाँ से कम से कम 15 बार, 20 बार, 15 टाइम्स, 30 टाइम्स एक्सेस हुई है, लेकिन क्योंकि आपने खरीदा नहीं है तो इस वजह से जो है ये आप एक्सेस नहीं कर सकते। फिर हमने उसको खरीदा। तो ये तीन तरह के पैकेजेस होते हैं, वो होते हैं तरीके। इसमें ई बुक्स पैकेजेस होते हैं, पिक एंड चूज होते हैं कि आप वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं जी, जो आपको जरूरत है आप वही लेते हैं। इसमें एक चीज और आ जाती है ई बुक्स पैकेजेस में कि ई बुक पैकेजेस में आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू गेट ह्यूज डिस्काउंट ऑन ई बुक्स पैकेजेस। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ द ई बुक पैकेजेस ऑन अर्थ साइंस इज 30,000 यूरो स्प्रिंगर। Then they will provide you it on 70% discount, only 10,000 euro. Okay, लेकिन when we talk about pick and choose, यहां पर जो है डिस्काउंट बहुत कम हो जाता है। यहां पर जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा आपका 10 टाइटल पर। अगर वो कहते हैं कि अगर आप 10 टाइटल खरीदेंगे, इफ यू परचेज 10 टाइटल्स, 20 टाइटल्स, then we will give you 10%, 5% discount. If you purchase 50 titles, then we will give 15% discount. If you purchase 100 titles, then we will give you
25% discounts. So it depends on the number of titles. Okay, we do not get much more discount on pick and choose. Like these access denied titles are like the pick and choose. They do not give us much more discount as we expect. But in ebook packages, we get a huge discount, near about 50%, 60%, 70%. वो हमें डिस्काउंट दे देते हैं. Yes. This is the web page of our website, Cambridge. यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने कौन सी किताबें किस तरह की खरीदी हैं हमने. देखिए, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि हमने जो है ये वाली जो खरीदी हैं, ये 19 ई बुक्स, ये हमने पिक एंड चूज खरीदी हैं. पिक एंड चूज. ये हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स ने जो है वो हमें लिस्ट भेजी. कोरोना पीरियड में हमें वी वर गिवन द फाइनेंस ऑफिस allotted us 61 crore rupees in corona 2019-20. जी. So we have purchased 65 lakh we have spent on ebooks at that time for the academic fraternity, so that they may read the study material from their home. Okay, so these type of books are the pick and choose. These are the pick and choose. Okay, we have got only 15% discount from the Sir, Cambridge publisher. Yes, yes, yes. सर नहीं दिख रहा है आप जो दिखा रहे हैं ना अच्छा, दिखाई नहीं कि दे ये रहा है. पिक. अच्छा अच्छा, नो ओके सर, ओके ओके. स्क्रीन में नहीं आ रहा है. अच्छा अच्छा, मैं अभी इसको अब आ जाएगा. अब आ गया है. नहीं सर, अभी भी नहीं आया. अब आ गया, आ अब गया आ गया. यस सर। सर, यस, सर नाउ इट इज. इट इज ओके. सेकंड भी आ जाएगा एक. ये भी आ गया है. नहीं आया. जी, अब आ गया है. यस सर, यस सर. ओके ओके. दोनों पेज आ गए हैं, एक ही पेज आया है अभी. सब बोथ. बोथ. ओके ओके. हाँ, तो मैं जो बोल रहा था आपसे, यहाँ पर आई एम शोइंग यू द नंबर ऑफ ई बुक्स विच वी हैव परचेज्ड फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, द यूजर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ओके, तो मैंने आपको 3 टाइप के दिखाए थे वहां पर, परपीचुअल और ईयरली. तो दीज आर द परपीचुअल. ओके, दीज आर परपीचुअल. पिक एंड चूज, इंट्रोडक्शन टू अरबिक लिटरेचर, ज्यादा इसमें टेक्स्ट बुक है. देखिए आप, ये एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. तो हमने यहाँ पर सिर्फ 15% डिस्काउंट, वी हैव रिसीव ओनली 15% डिस्काउंट फ्रॉम द कैम्ब्रिज. पिक एंड चूज, दिस इज द पिक एंड चूज. ओके, these are perpetual, these are accessible more than 14 years. Now I am showing you the titles जिसमें हमें पब्लिशर ने हमें बताया कि ये आपके यहाँ are you showing this, are you seeing this? यस सर, यस सर. Yes, sir. ओके ओके. ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली एल्जीवियर की बुक्स हैं. यस सर। जी, तो एल्जीवियर ने, साइंस डायरेक्ट ने हमें बताया कि ये जो है, ये बुक्स आपकी जो है वो इस तरह की हैं कि आपके यहाँ से ये एक्सेस हुई हैं, लेकिन आपके यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि आपने नहीं खरीदी. ठीक है, ये वो किताबें हैं. कोई इसमें उन्होंने बाकायदा हमें एक एक्सेल शीट दी थी जिसमें शो किया था उन्होंने हमें कि ये हमारे सिस्टम से आई हैं, कि ये 200 बार एक्सेस हुई, दिस हैज बीन एक्सेस 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 15 टाइम्स टू. ओके, ऑन
that behalf we purchase these. ओके, तो ये इस तरह के जो हैं आपका एक जहां हम बात ई बुक्स पैकेजेस की बात के हम करते हैं, तो एक ऑक्सफोर्ड वालों का एक पैकेज आता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। उसमें व्हाट इज दिस, दीज आर द बुक पैकेज ऑन टेक्स्ट बुक लाइक लॉ, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। तो इस तरह के जो है वो होते हैं, वो हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट हमें दे देते हैं वो। और बहुत अर्थ साइंस पर स्प्रिंगर वालों के बहुत होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो आता है लाइसेंस एग्रीमेंट। नाउ यू हैव परचेज द ई बुक्स। अच्छा, इसमें ऑर्डर में क्या होता है ये और बता देता हूं आपको मैं। ई बुक्स के ऑर्डर में कि आप जो है उनसे प्रपोजल मंगवा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, आपने जो है वो ई बुक्स के टाइटल, यू हैव सेलेक्ट द ई बुक्स टाइटल्स, देन यू सेंड इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, okay, to the concerned person of the space of the related publisher. Then what happened, the concerned person sent you the proposal showing the discount, the terms and condition, this is DRM free, मतलब हम जो है we will not charge you in yearly। हम आपको जो है एक बार हम आपसे पैसे लेंगे, वी विल टेक ओनली वन टाइम, पर परचेज होगी हम आपसे बस एक बार लेंगे। और हर साल हम मेंटेनेंस चार्जेस नहीं, वी विल नॉट टेक एनी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस। हर साल हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। ये सब देखना पड़ता है हमें कि भाई ऐसा तो नहीं है ये 14 साल के लिए दे रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग अस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द ई बुक्स फॉर 14 years। आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर, आफ्टर पेमेंट, दे विल आस्क अस after a year that please give us the maintenance charges, otherwise the accessibility will not be प्रोवाइड टू यू। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें ऑर्डर में मेंशन करनी पड़ती है कि जी द लिस्ट ऑफ इनक्लोज ई बुक्स जी एट दिस डिस्काउंट, जी प्लीज प्रोवाइड द एक्सेस ऑन बिलो आईपी एड्रेस। आपको अपना आईपी एड्रेस भी भेजना पड़ता है पब्लिशर को। ठीक है, तो ई बुक्स थोड़ा सा मतलब अलग है उससे, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर प्रिंट बुक से। वो बस यही है कि आपको इसमें अपना आईपी एड्रेस भेजना पड़ता है। ठीक, अगर वो आईपी एड्रेस बेस्ड है। और अगर वो आईपी एड्रेस बेस्ड नहीं है और यूजर आईडी पासवर्ड पर है, जैसे हमने कैम्ब्रिज की इंग्लिश बुक्स खरीदी थी तो वो उसमें आईडी था, यानी हमें जो है अगर वो इंग्लिश से रिलेटेड थी तो हमें ये देखना पड़ा कि इंग्लिश में कितने स्टूडेंट हैं, तो हमने उसके उतने ही अकाउंट क्रिएट करे और उतने ही अकाउंट क्रिएट करके हर एक स्टूडेंट को एक एक दिया। ठीक है, तब वो एक्सेसिबल हुई। तो आपको ये भी मेंशन करना होता है ऑर्डर फॉर्म पर कि ये इस आईपी एड्रेस पर जो है आप हमें जो है वो प्रोवाइड कराइए। इफ दिस इज नॉट आईपी बेस्ड देन प्रोवाइडर्स द यूजर आईडी। ओके, और एक चीज और इसमें ये होती है कि यूजेज स्टैटिस्टिक्स, कि आप जब कोई भी ई बुक्स पैकेज लेते हैं जी, if you procure any ebook package or pick and choose titles or access titles, you also ask the publisher to provide the administrative ID and password to see how these books are used by our users। यानी आप उसकी यूजेज स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं हर साल की, हर महीने की, हर 3 महीने की। ये देखते रहते हैं कि ये ई बुक्स कितनी इस्तेमाल हो रही हैं। ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है आपका। ठीक है, फिर आता है आपका लाइसेंस एग्रीमेंट होता है इसमें। देखिए जी, ईयरली वाली में तो नहीं होता है, या कुछ पब्लिशर करते हैं ईयरली भी कुछ कर, लेकिन जो मेन है वो परपीचुअल में लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। और कुछ सब पब्लिशर जी
डज नॉट स्टार्ट द एक्सेस, डू नॉट स्टार्ट द एक्सेस जी, जब तक अंटिल द लाइसेंस एग्रीमेंट इज नॉट बी फाइनलाइज्ड। जब तक कि लाइसेंस एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो जाता है वो एक्सेस स्टार्ट नहीं करते, चाहे लाइसेंस एग्रीमेंट होने में 3 महीने लग जाए जी। जैसा आपका एल्जीवियर है, स्प्रिंगर है, वाइल्डे है, जब तक लाइसेंस एग्रीमेंट ना हो जाएगा ये एक्सेस स्टार्ट नहीं करते। लेकिन ऑक्सफोर्ड है, रोटलेज है, टेलन फ्रांसिस वाले हैं, है ना, ये जो है आपके, ये आपका डी ग्रूटर है, ये जस्ट आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर दे स्टार्ट द एक्सेस। बाद में फिर लाइसेंस एग्रीमेंट होता रहता है जी। लाइसेंस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि भाई हमने ये किताबें खरीदी है, परचेज दिस बुक ऑन एट दिस कॉस्ट, और इसका जो है वो कॉमर्शियल यूज नहीं होगा। वी विल नॉट सेल द बुक्स जी, कि भाई लाइए हम आपको बुक दे रहे हैं, वी आर गिविंग यू योर डिजायर्ड बुक टू अदर यूनिवर्सिटी एंड प्लीज पे टू अस। ये सारी उसमें चीजें, सिस्टमेटिक डाउनलोडिंग नहीं होगी, कॉपीराइट का ख्याल रखा जाएगा। वी विल जी ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट द कॉपीराइट। ओके, सिस्टमेटिक डाउनलोड डाउनलोड नहीं होगी, कॉमर्शियल यूज नहीं होगा इसका जी। और अगर कोई डिस्प्यूट, इफ एनी डिस्प्यूट रेज बिटवीन द टू पार्टीज वेयर इट विल बी डिसाइडेड। ओके, तो इसमें एक पॉइंट की बात जो बहुत अहम है उसको गौर से आप सुनिएगा, प्लीज फोकस ऑन दैट फॉर एग्जांपल स्प्रिंगर, it the Springer mentioned that the jury place of jurisdiction, if any dispute raised, the place of jurisdiction will be Germany, or Oxford, the place of jurisdiction will be the London। ओके, तो हम लंदन थोड़ी जाए, कोई अगर अगर जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है, बाद में कोई रेज होता है इश्यू, तो हम लंदन थोड़ी जाएंगे, हम जर्मनी थोड़ी जाएंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हमारा करीब में ही हो। जैसे हम अलीगढ़ में है तो दिल्ली में हो, अगर हम हैदराबाद है तो हैदराबाद हो, अगर हम चेन्नई है तो चेन्नई हो, अगर मुंबई है तो मुंबई हो। यानी जहां से हमें जो है वो एक्सेसिबिलिटी करीब पड़ जाए, उसके लिए हम वहां बड़ा इंसिस्ट करते हैं। बहुत से पब्लिशर चेंज कर देते हैं, कहते ठीक है दिल्ली हो जाएगा, बहुत से कहते हैं नहीं नहीं होगा, यही होगा। तो फिर हम फिर कहते हैं ठीक है यही रख लीजिए, लेकिन हम पूरा इंसिस्ट करते हैं उनको कि प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, कोई अगर डिस्प्यूट रेज होता है तो वो चीज जो है वो हमारे नियरेस्ट पॉइंट पर, नियरेस्ट जगह पर जो है वो हो। एक चीज और हम ऐड कराने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट रेज होता है तो सबसे पहले उसे इंस्टीट्यूशन के हेड के सामने रखा जाए, यानी वाइस चांसलर है या डायरेक्टर है। ओके जी, द मैटर विल बी पुट बिफोर द हायर अथॉरिटीज लाइक वाइस चांसलर, डायरेक्टर। इफ दिस इज नॉट सॉल्व्ड देन वी विल मूव टू द कोर्ट। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं वो निगोशिएशन के लिए बड़े फायदेमंद होती है, अगर आप उसी वक्त लाइसेंस एग्रीमेंट में सारी चीजें जो हैं आप देख लेते हैं। ठीक है, तो बताइए इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन? 4 बज गए हैं। कामरान? हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जैसे आपने बताया कि जो ई बुक्स को हम एक्वायर कर रहे हैं, जी ठीक जी है, जी जी वो जी लाइब्रेरी एक्वायर करेगी। तो जो जी आपने जो आगे एक्सेस टाइप में बताया कि आईपी बेस्ड तो है ही है, ठीक है, जी ये तो जी क्लियर है। जी बट जी यूजर आईडी से तो फिर वो इंडिविजुअली नहीं हो जाएगा अगर कोई ई हाँ बुक एक्वायर जी होता है तो। जी 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 जी, असल में क्या होता है जी, योर गुड नेम? मीनू कौर। मीनू कौर। ये कौर जी, इसमें जो है वो मैंने आपको बताया ना कि 2 तरह की ई बुक्स होती हैं जी। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये आपकी ऑक्सफोर्ड की ई बुक्स हैं या कैम्ब्रिज जी की हैं। इसमें क्या जी होता है कि आप जब लिंक पर जाती हैं तो फिर लिंक पर जाने के बाद आफ्टर क्लिकिंग द लिंक यू विल गेट अ वेब पेज वेयर पीडीएफ डाउनलोडिंग ऑप्शन विल बी अवेलेबल। ओके, you just click the PDF link and the PDF will be opened before you and you can download it on your desktop। तो आप उसे डेस्कटॉप पर एक्सेस कर लेंगी, डाउनलोड कर लेंगी। लेकिन कैम्ब्रिज की एक इंग्लिश का एक इनका एक पैकेज है, यूजर आईडी पे खुलता है। ये इस पे कम ही बुक होती हैं, बहुत कम बुक होती हैं। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द ई बुक्स जो है वो आईपी बेस्ड ही हैं, यानी उसमें कोई यूजर आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट दैट योर कंप्यूटर, योर मोबाइल शुड बी कनेक्टेड टू द इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। सिर्फ आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम कनेक्टेड होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क पर,
वो एक्सेस हो जाएगी, दिस इज द आईपी। ओके, जी लेकिन कुछ बुक्स मैंने बताया ना आपसे, जैसे ये वाली ऑक्सफोर्ड उसकी कैम्ब्रिज की, हमने 1 साल के लिए खरीदी थी, सिर्फ वो शेल्फ होती हैं उनकी, वो डाउनलोड नहीं होती हैं। ठीक जी है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो एक एक बुक के लिए एक आईडी पासवर्ड बनाया जाता है। हमने वो 80 किताबें खरीदी थी, तो उसके लिए 80 आईडी पासवर्ड बनाए गए, और बाकायदा उस पर जो है एक हेल्पिंग डेस्क रखी गई जो हर एक स्टूडेंट को वो आईडी पासवर्ड दिया करता था। आप मेरी बात समझ रही हैं? हाँ तो जी, ये, समझ रही हूँ। जी सर ये जी, कुछ कुछ एसबीआई सर्विस की तरह नहीं है? हाँ, ये असल में ये ज्यादा नहीं चल पाता है जी। अच्छा ये मुश्किल से, अगर 100 बुक्स हैं, 100% में से 10 to 20% इस तरह की ई बुक्स होती हैं जो यूजर आईडी बेस्ड होती हैं, वरना जी 80% ई बुक्स जो हैं जो वो है आईपी आईपी बेस्ड बेस्ड है, हैं। आईपी आईपी बेस्ड बेस्ड है। हैं, जी जी जी। जी सर, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं, में आवाज नहीं कुछ आ रही। ऐसा जी, इश्यू रिटर्न या कोई टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे हम फिजिकल बुक्स में करते ई हैं? बुक्स में, हाँ, ई बुक्स में कोई इशू रिटर्न टाइम नहीं होता। अच्छा, एक चीज और है, इंटरेस्टिंग चीज जो मैं रह गया बताने से, वो ये है। जी सर, जी इसमें। जी, जी सर, नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आ रही है। अब नहीं आ रही, रुक गई है। हेलो, हेलो। जी सर, और ये बुक्स को डीडीसी नंबर वगैरह ऐसा कुछ देना नहीं पड़ता है क्या, क्लासिफिकेशन वगैरह या बिल्कुल कुछ? बिल्कुल, कर सकते हैं आप इसमें। असल में बड़ा आसान है चीजें। इसमें क्या होता है कि आप उनसे जो है मार्क फॉर्मेट, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, पब्लिश कैम्ब्रिज को फॉर एग्जांपल किया आपने, तो कैम्ब्रिज से जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि आप जो हमें एक्सेस दे रहे हैं, एक्सेस दे दी उन्होंने अब आपको, आपके पास लिंक वाली फाइल भेज दी एक्सेल शीट में, वो एक लिंक की फाइल भेज देते हैं, टाइटल होता है, ऑथर होता है, पब्लिशर होता है, और उसका यूआरएल होता है। ठीक है, अब आप उनसे ये भी कहते हैं कि भाई आप हमें मार्क फॉर्मेट में इसका एक डेटा भेजिए, तो आपको मार्क फॉर्मेट में डेटा देता है। और आपके कोहा में भी है, लिप्सिस में भी है, नियर अबाउट सारे सॉफ्टवेयर में वो होता है कि आप जैसे उस पर उसको पोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो सारा का सारा आपके सॉफ्टवेयर में फीड करता होता चला जाएगा। यू नीड नॉट टू एंटर वन बाय वन डेटा, कि टाइटल आप ई बुक में जो है टाइटल एंटर कर रहे हैं, ऑथर एंटर कर रहे हैं, इसमें ये नहीं है। मार्क डेटा आपके पास बना हुआ आएगा पब्लिशर से, आप बस उसको इंपोर्ट करा दीजिए अपने सॉफ्टवेयर में, एंट्रीज बनकर आपके सामने आ जाएंगी, और वो फिर ओपैक पर शो भी होने लगेंगी। हाँ, उसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी के जरूरत के हिसाब से। सर आपका कहने का मतलब ये है जैसे कि लाइब्रेरी में हम कोहा में एंट्री करते हैं मार्क में, जी जी, अ, इसकी प्रिंट बुक्स की, तो जी जी ठीक जी, इसी तरीके से ई बुक्स की भी एंट्रीज कोहा में होंगी? नहीं, इसमें ये एक फायदा है कि आप चाहे तो वन बाय वन कर लें, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, एक आदमी उसमें लगाना पड़ेगा, पूरा एक ये सर स्टाफ। कैटलॉगिंग, हाँ कैटलॉगिंग हाँ, के लिए। इसमें एक फायदा ये है कि आप सिर्फ प्लीज रिक्वेस्ट क्या इंस्ट्रक्ट कीजिए, यू हैव परचेज, पब्लिशर से, कि भाई आप हमें मार्क फॉर्मेट में इन बुक्स का डेटा दीजिए। वो आपको मार्क फॉर्मेट में एक फाइल भेज देंगे, जिसको आप जो है वो इंपोर्ट कर देंगे अपने, जी, सिस्टम में, सिस्टम जो में, भी उसमें सिस्टम कोहा में। जी, कोहा में। वो एक एक ऑप्शन होता है कि भाई फाइल ये इंपोर्ट कर लीजिए आप जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो है वो सारा डेटा लेकर आपकी एंट्रीज बन जाएंगी उसमें। ठीक है जी, सर। तो वन बाय वन करने की जरूरत नहीं होती है इसमें, ये एक इसमें फैसिलिटी होती है मार्क फॉर्मेट उसकी, मार्क रिकॉर्ड की वजह से। मार्क रिकॉर्ड की वजह, जी जी सर। जी जी जी। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? तो बुक्स कितनी यूज हुई सर, उसके बारे में कैसे पता लगता है कि हाँ, जैसे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। वो जो हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें मेंशन करते हैं कि प्लीज प्रोवाइड
also provide the administrative user ID and password। तो वो हमें बाकायदा हमारे इंस्टीट्यूशन के नाम से एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो। तो उससे हम जब जाते हैं और वहां जब हम किसी भी एल्जीवियर की साइट पर जाएंगे या उसकी साइट पर जाएंगे, एल्जीवियर की या स्प्रिंगर की, तो वहाँ लॉगिन होता है साइट में। लॉगिन करेंगे तो वहां पर आ जाएगा, वहां वो यूजर आईडी पासवर्ड वो हमें लिंक भी देते हैं हमें वो जो हमारे पब्लिशर होते हैं वो लिंक यूजर आईडी पासवर्ड के साथ लिंक भी हमें देते हैं कि आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो दो बॉक्सेस बने आ जाएंगे आईडी और पासवर्ड के, आप एंटर कीजिए। जब आप उसमें एंटर करेंगे तो पूरा एक वेब पेज खुल के आ जाएगा अंदर, जैसे आप अपना मेल की तरह होता है आपका। साइड में सारे होंगे, एक्सेस डिनाइड टाइटल्स होंगे, यूसेज स्टैटिस्टिक्स होगी, इनकाउंटर, जी इनको काउंटर्स भी कहते हैं इनको, जी। तो वहां क्लिक करेंगे, उसमें फिर दो बॉक्स बने हुए आ जाते हैं, कब से कब तक की आप यूसेज चाहते हैं, तो वो आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी सारी, फिर उसे इंपोर्ट कर लीजिए फाइल, वो कर ली, डाउनलोड कर ली, डाउनलोड हो जाएगी, मेल भी हो जाएगी, है ना। तो ये सारा बड़ा अच्छा प्रोसेस होता है इसका। ठीक है सर, और बताइए, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, यस, whether you provide participation certificate for this session, sir? व्हाट प्लीज पार्डन? Whether you provide participation Yes, certificate for yes, this yes. We session? will provide. Yeah, okay, यस, okay. ओके, We will provide to only registered Sir, participants. I also want the PPT. ओके, पीपीटी विल बी शेयर्ड बाय कामरान इंशाल्लाह। ओके, Okay, thank you so much, sir. ओके, इसमें एक चीज और रह गई है कामरान। हेलो, Yes, हेलो, sir. इसमें एक Yes, चीज sir. और, जी जी, आप कुछ कहना पूछना चाह रही हैं? हेलो, जी जी, इसमें बस मैं लास्ट पॉइंट फिर मैं अपना कंक्लूड कर दूंगा, जो टाइम ज्यादा हो गया है। एक चीज और जो मेन रह गई है इसमें, वो रह गई है कि ई बुक की कॉस्ट 10 टाइम्स ज्यादा होती है, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू प्रिंट बुक्स के। आप PHI Learning, textbook are published by PHI Learning. They came to us, the representative came to us last year, Mr. Mukesh, I think. जी, तो these are the textbook which are used a lot by the BSc student, BTech student, जी, SS Shastri, numerical analysis. तो they were asking us to subscribe these books yearly basis, okay, for 1 year. So we said that we know we want it in perpetual access. देन व्हाट हैपन कि 200 रुपए, 400 रुपए की बुक को उन्होंने क्या किया, कहा कि ये 15,000 रुपए की बुक है सर, अभी ये 10,000 रुपए की बुक है। तो ये, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप ये नहीं सोचिए कि अगर प्रिंट बुक जो है वो 200 रुपए की है तो वो ई बुक भी 200 रुपए की होगी। इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रिंट बुक इज 200 रुपीज, देन इट विल बी सेम इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट, इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स, ये नहीं है जी, बल्कि अलग हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, उसमें कि सिंगल एक्सेस के लिए पैसे कम होते हैं, यानी सिंगल यूजर कोई एक्सेस करना चाहता है तो इट्स कॉस्ट विल बी $10, $20। इफ यू आर सब्सक्राइबिंग दिस फॉर द इंस्टीट्यूशन, देन इट्स कॉस्ट विल बी $200, $250। तो ये भी एक आप ध्यान रखिएगा कि इसकी कॉस्ट इंस्टीट्यूशन पर भी बढ़ती चली जाती है, कि छोटे इंस्टीट्यूशन के लिए जहां 2,000 स्टूडेंट है उनके लिए कम होगी, स्टेट लाइब्रेरी, स्टेट यूनिवर्सिटी यहां पर स्टूडेंट 5,000 हैं, 10,000 हैं, और थोड़ी बढ़ जाएगी। एकेडमिक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जहां स्टूडेंट 30,000 हैं तो इसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो इसकी कॉस्ट भी डायनामिकली बढ़ती है। ठीक है, ठीक कामरान, 4:15, मिस्टर कामरान, फजल, Yeah, yes, sir. yes, please, we may conclude.
Yeah, sure. Okay. So, thank you so much, everyone, for joining today's webinar on building library collections, acquisition steps for print and ebooks. And a special thanks to our resource person, Mr. Ashkar Hussain Hashmi, sir, for delivering such an insightful and practical session. Your valuable experience and clear explanations have truly enriched our understanding of acquisition workflows and best practices. We hope today's session was informative and helpful for all participants, whether you are a student, a working professional, or someone exploring the LIS field. If you have any further question or need support in your learning journey, feel free to reach out the Digital Resource and Training Center. Before we conclude, we request everyone to stay connected with our upcoming workshops, webinars, and other training programs. So once again, thank you for your participation, your time, and your positive energy. With this, we formally conclude today's session. Have a great day ahead and stay learning. Thank you. Thanks a lot, Hashmi sir. I hope this session will be very fruitful for our bright future. Okay. Thank you. Thank you.